Assalamualaikum everyone and welcome to the training session. Actually, this session is all about introduction of C language. We will be discussing about C in very brief or very basic manner. What actually C is, or first of all, if I say what actually programming is, what is that? What actually programming is, and why we need to do programming. What is the reason behind doing programming? And because these are the questions that your students ask, that what is the need of the programming? Why we should program? What need they feel to that they started programming, or what is the reason behind, and what type of programming is there, and when we program type any program, what happens then, and what are the background processes that run, and so on. So we will be discussing. So first of all, introducing the language that we are discussing, that is C language. So C language, the very basic introduction of C language is that C language was created by Denis Ritchie at West Laboratory. Okay, the creator of C language was Denis Ritchie. Okay, the name of that particular scientist or whatsoever I say, a computer scientist or whatsoever we say, that is Denis Ritchie, and it was created at Bell's Laboratory in early 1970s. Then there were a lot of amendments were made and so on. So basically, the creator, if anyone asks the question that who is the creator of C language, or who is the father, so suppose we say Charles Babbage is the father of computer language. So C language, the father of C language is Denis Ritchie, and it was created at this laboratory that is located in the America, and the year was early 1970s, means it was made in 90 or created in 1970s. So that may be 71 or 72 or 73 and so on. That is why they have written early 1970s. So the question, first of all, question is, okay, leave that particular C language. That was a little bit introduction of C language. But the question over here is that what actually language is? Language अगर in simple words anyone asks, language basically होती है, language क्या होती है? So definition of language is the path of communication और वे ऑफ कम्युनिकेशन, क्योंकि लैंग्वेज की बेसिक डेफिनेशन ये है कि पाथ ऑफ कम्युनिकेशन या फिर मेथड ऑफ कम्युनिकेशन और वे ऑफ कम्युनिकेशन। अगर हमें किसी से करना है ना, अगर किसी से बातचीत करनी है, किसी से रब्ता रखना है, किसी से कोई भी, तो उसके लिए वी नीड अ सर्टेन पाथ, कम्युनिकेशन पाथ। तो वो कम्युनिकेशन पाथ जो है वो लैंग्वेज कहलाती है। अब क्वेश्चन ये है कि हमें प्रोग्रामिंग क्यों लर्न करनी है। नाउ द आंसर इज computer cannot understand our language. Okay, we know very well the language that computer understands is binary language. Computer के सिर्फ ऐसे पिछली language समझ में दी है जो कि है binary language. Now we cannot understand binary. It is not possible for us to understand binary number, binary language, because binary language consists of two numbers, 0 and 1. So whatsoever we write, this is suppose my name is XYZ, my father name is, or I write void, man, void, anything I write up, it will be represented in the memory of computer as zeros and ones. So zero means bit off and one means bit on. So computer only understands, as I said, the computer only understands the binary language. So in order to communicate with the computer, or in order to communicate with the machine or CPU or anything we say, we need a language, because we want to communicate. The reason for of doing programming is that we want to communicate with the आवर सिस्टम। हमें बात करनी है उससे, कम्युनिकेशन करनी है। अब उसको हमारी लैंग्वेज समझ में नहीं आती, हमें उसकी लैंग्वेज समझ में नहीं आती, तो जाहिर सी बात है हमें मिडिल की कोई तरकीब निकालनी पड़ेगी जिसके थ्रू हम जो है उससे बात कर सकें। सो दैट इज वाई, दैट इज द मोटिव, दैट इज द रीजन टू स्टार्ट प्रोग्रामिंग। इसीलिए हम प्रोग्रामिंग करते हैं, क्योंकि उसको ना इंग्लिश आती है, ना सिंधी, ना उर्दू, XYZ जो भी हमारी लैंग्वेज है, तो उसको जो लैंग्वेज आती है उस तक पहुंचने के लिए हमने कुछ लैंग्वेजेस डिस्कवर की हैं, जैसे सी है, C++ है, जावा है, जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो होती हैं, उनके थ्रू जो है हम जो है कंप्यूटर से कम्युनिकेशन करते हैं। लेकिन हाँ, क्वेश्चन ये भी है, कंप्यूटर को
जैसे मैंने बोला कंप्यूटर को सिर्फ जीरो और वन समझ में आता है। तो हम जो सी में प्रोग्राम लिखेंगे, सी प्लस प्लस में, जावा में, या किसी भी लैंग्वेज में, तो वो भी कंप्यूटर को ऐसे आसानी से समझ में नहीं आएगा। उसके लिए फिर लैंग्वेज ट्रांसलेटर होते हैं, जिस उनका काम क्या होता है कि हम जो लिखते हैं ना, वो होती है हमारी हाई लेवल की इंस्ट्रक्शन, उसको बोलते हैं वाट एवर वी राइट इन प्रोग्रामिंग, उसको बोलते हैं दैट इज कॉल्ड हाई लेवल इंस्ट्रक्शन और हाई लेवल लैंग्वेज। तो कंप्यूटर उसका ट्रांसलेटर का क्या काम होता है, वो जो है हाई लेवल लैंग्वेज को जो है वो लो लेवल लैंग्वेज मतलब मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। हम जो भी इंस्ट्रक्शन लिखते हैं ना, जैसे से सपोज मैंने सी का कोई प्रोग्राम लिखा, ओके, वी विल कम टू दैट, व्हाट इज द method to write program, or we will be discussing first program of C. Now here only at that point, तो जो है हमें उससे कम्युनिकेशन करनी है, और जो है वो सिर्फ और सिर्फ जैसे मैंने बोला, उसको तो कोई लैंग्वेज इसके जो है बाइनरी के अलावा कोई भी लैंग्वेज समझ में नहीं आती। तो ट्रांसलेटर क्या काम करता है कि हमने जो से सपोज सी का या कोई भी प्रोग्राम लिखा ना, वो उसको कंपाइल करेगा, इट विल कंपाइल दैट पर्टिकुलर लैंग्वेज एंड कन्वर्ट इट इनटू मशीन लैंग्वेज। ट्रांसलेटर का बेसिकली ये काम होता है। अब यहाँ पे वर्ड यूज किए मैंने हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है। अब लैंग्वेज के कुछ टाइप्स हैं। हाई लेवल लैंग्वेज होती है, मिडिल लेवल होती है, एक लो लेवल में होती है। हाई लेवल लैंग्वेज क्या है? दैट इज इजीली अंडरस्टैंडेबल बाय ह्यूमन। द डेफिनेशन ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज इज दैट लैंग्वेज दैट इज इजीली अंडरस्टैंडेबल बाय ह्यूमन। जैसे बिकॉज जैसे हम सी की बात करें, सी प्लस प्लस की, जावा की, तो जो है उनको हाई लेवल लैंग्वेज कंसिडर किया जाता है। लेकिन एट सम पॉइंट जो है सी को हम मिडिल लेवल लैंग्वेज भी कहते हैं, बिकॉज इट इज machine interactive language. So we will be discussing it later. But for time being, for at that particular point, we can say that C is also high level language. So C, Java, C++, these all are high level language. अब क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि इनको हाई लेवल लैंग्वेज क्यों कहा जाता है? तो हाई लेवल लैंग्वेज की बेसिकली डेफिनेशन मैंने बताई कि हाई लेवल लैंग्वेज आर दोस दैट आर इजीली अंडरस्टैंडेबल बाय ह्यूमन। क्योंकि हाई लेवल लैंग्वेज जैसे हम सी का आगे प्रोग्राम देखेंगे फर्स्ट, तो वो नॉर्मल इंग्लिश में होता है, उसमें साइंटेक्स होते हैं। ऐसे नहीं है कि जो माय नेम इज एक्स वाई जेड और डियर कंप्यूटर प्लीज प्रिंट दिस, नहीं, ऐसे नहीं होता। उसकी कुछ साइंटेक्स होते हैं, उसकी जो देट कुछ एक्सप्रेशन होती है, कुछ साइंटेक्स होते हैं जिसके जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं। तो उसी पे के हिसाब से हमें चलना पड़ता है। लेकिन वो उसकी जो प्रोग्रामिंग होती है वो नॉर्मल इंग्लिश में होती है, तो वो हम आसानी से समझ सकते हैं, इसलिए उसको बोलते हैं हाई लेवल लैंग्वेज, मींस दैट इज इजीली अंडरस्टैंडेबल बाय कंप्यूटर। और दूसरी होती है लो लेवल लैंग्वेज, सॉरी, दैट इज यूजुअली हाई लेवल लैंग्वेज इज इजीली अंडरस्टैंडेबल बाय ह्यूमन। और दूसरी होती है लो लेवल लैंग्वेज, दैट इज इजीली अंडरस्टैंडेबल बाय computer or machine, because that is machine language, that is also called binary language. So binary language, machine language, these both are same. So binary language consists of zeros and ones. अब जब बात आती है zeros और ones की, तो जाहिर सी बात है हमको तो zeros और ones का पता नहीं होता ना। अगर मैंने से सपोज ए टाइप किया, अब उसके बैक एंड पे क्या आस्की कोड है वो तो मुझे नहीं पता। अब मैंने वर्ड आस्की कोड डिफाइन किया है, तो उसको भी मैं फर्दर आगे डिफाइन करूंगा कि आस्की कोड क्या होता है। मैंने से सपोज जो है कि ए प्रेस किया ना सॉरी, तो कंप्यूटर उसको ए नहीं समझेगा, वो उसको 100 XYZ जो भी उसका बाइनरी जो कोड है, वो उसको उस हिसाब से समझेगा। अब ट्रांसलेटर बीच में क्या काम करेगा, वो उसको ट्रांसलेट करके उसकी लैंग्वेज में उसको बताएगा कि ही वांट्स टू कम्युनिकेट विथ यू, एंड the key that he has pressed or sentence he has written, the actual meaning of that particular sentence is this। तो उसको जो है ट्रांसलेट करके उसकी लैंग्वेज में समझाएगा। इसको अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बोलूँ ना, अगर दो फॉरेनर्स हैं, एक जो है से सपोज चाइना का है, जो जिसको सिर्फ चाइनीज आती है, ठीक है, और या ऐसा ऐसा कंसीडर करें कि एक चाइना से बंदा आया है, ठीक है, दोनों फॉरेनर है, एक चाइना से आया है एंड दूसरा जो है आया से सपोज फ्रांस से, उसको सिर्फ फ्रेंच आती है, ठीक है, लेकिन उन दोनों को एक कॉमन लैंग्वेज आती है। सॉरी, हाँ, तो जो है एक को फ्रेंच आती है, एक को सिर्फ चाइनीज आती है। अब क्या है, हमें कोई ना कोई बीच में एक ट्रांसलेटर चाहिए होगा, ठीक है, जो उसकी लैंग्वेज समझ के, उसकी बात समझ के, जो चाइनीज की बात समझ के वो फ्रेंच वाले को बताए और फ्रेंच वाले की समझ के चाइनीज वाले को बताए। तो यही चीज़ हमारे पास यहाँ पे है
हम जो भी हाई लेवल इंस्ट्रक्शन लिखते हैं ना, वो ट्रांसलेटर बेसिकली क्या करता है, जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर है वो जो है उस हाई लेवल जो इंस्ट्रक्शन है हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करके कंप्यूटर को शो करता है या प्रेजेंट करता है उसके सामने। तो ये होता इससे है कि हाई लेवल और लो लेवल लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट तो बेसिकली जो है थोड़ा बहुत हमने क्लियर कर लिया कि हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है। इट इज़ इजीली अंडरस्टैंडेबल बाय कंप्यूटर, क्योंकि वो जो है हाई लेवल इंस्ट्रक्शन होती हैं उसमें नॉर्मल इंग्लिश यूज होती है जो हमारी नॉर्मल हम यूज़ करते हैं उसी के हिसाब से। साइंटेक्स उसमें होते हैं वो भी नॉर्मल इंग्लिश में होते हैं। और ऑन द अदर हैंड देयर इज अ लो लेवल लैंग्वेज, ठीक है। और लो लेवल लैंग्वेज इज प्योरली मशीन लैंग्वेज बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ जीरोस एंड वंस। एंड देयर इज अनदर लैंग्वेज दैट इज मिडिल लेवल लैंग्वेज। थोड़ा बहुत इसके बारे में बता देता हूँ। मिडिल लेवल लैंग्वेज इज द लैंग्वेज दैट इज a bit near to machine language, वो जो है that is in the middle of high and low level। क्योंकि मिडिल वर्ड का मतलब ये है कि वो मिडिल लेवल है, तो मतलब हाई लेवल और लो लेवल के बीच में जो लैंग्वेज होती है ना उसको बोलते हैं मिडिल लेवल। अब बहुत सारे ऐसे जो है कंप्यूटर्स जो भी प्रोग्रामर्स है या साइंटिस्ट है वो ये बात कंसीडर करते हैं कि सी जो है हाई लेवल लैंग्वेज नहीं है, वो जो है मिडिल लेवल लैंग्वेज है। तो मिडिल लेवल लैंग्वेज उसको इसीलिए बोलते हैं क्योंकि वो मशीन इंटरेक्टिव होती है और वो हार्डवेयर सपोर्टेड लैंग्वेज होती है। उसके थ्रू हम हार्डवेयर पे प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं, हार्डवेयर को टच करके अपने प्रोग्राम में उसको भी मतलब कंसीडर करा सकते हैं, उससे भी काम ले सकते हैं। तो इसीलिए और भी बहुत चीज़ों से फॉर टाइम बिंग जो है आप यही कंसीडर करें कि बरा अगर इस कॉन्सेप्ट में जाएंगे तो वी विल बी गोइंग इन वेरी डीप। लेकिन जो है इस पॉइंट पे सिर्फ आप यही चीज़ अंडरस्टैंड करें कि C is also high level language. Okay, so high level और low level का concept यहीं पे almost जो है थोड़ा बहुत तो क्लियर हो गया होगा जितना मेरा। उसके बाद आते हैं ट्रांसलेटर। मैंने बोला लैंग्वेज ट्रांसलेटर। सो देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ लैंग्वेज, सॉरी 3 टाइप्स ऑफ लैंग्वेज ट्रांसलेटर। फर्स्ट ऑफ ऑल कंपाइलर, सेकंड वन इज इंटरप्रेटर एंड थर्ड वन इज असेंबलर। 3 टाइप के ट्रांसलेटर होते हैं। एक होता है कंपाइलर, दूसरा होता है असेंबलर एंड तीसरा होता है एक कंपाइलर, दूसरा इंटरप्रेटर एंड थर्ड वन इज असेंबलर। अब कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर ये तीनों लैंग्वेज ट्रांसलेटर हैं, लेकिन इनमें फर्क क्या है? What is the difference between these three? Because these three are all of three are जो language translators. So what is the difference between these three? So compile the definition of compiler is that compiler is a language translator that translates the whole program at once. कंपाइलर क्या करता है कि पूरे जो भी हमने प्रोग्राम लिखा ना उसको पूरे को एक साथ कंपाइल करेगा और उसमें जो भी एरर्स होगी, जो भी वार्निंग्स होंगी, वो उसके बाद जो लास्ट में शो करेगा। मतलब मेरे पूरे प्रोग्राम को कंपाइल कर लेगा। तो कंपाइलर बेसिकली ऐसे काम करता है। उसके बाद अगर मैं इंटरप्रेटर की बात करूँगा तो इंटरप्रेटर क्या करता है, वो लाइन बाय लाइन हमारे प्रोग्राम को कंपाइल करता है, बेसिकली ट्रांसलेट करता है। कंपाइल जो है कंपाइलर भी ट्रांसलेट करता है, ट्रांसलेटर का टाइप है तो ट्रांसलेट करेगा। कंपाइलर भी ट्रांसलेट करता है, असेंबलर भी ट्रांसलेट करता है, इंटरप्रेटर भी ट्रांसलेट करता है। लेकिन कंपाइलर जो पूरे प्रोग्राम को एक साथ ट्रांसलेट करके कंपाइल करके और जो है उसमें जो एरर्स है, जो वार्निंग्स है, XYZ वो सारी जो है वो शो करेगा लास्ट में, कट इन द लास्ट में पूरे प्रोग्राम को कंपाइल करेगा, ट्रांसलेट करेगा। उसके बाद इंटरप्रेटर की बात करें तो इंटरप्रेटर क्या करते हैं, लाइन बाय लाइन जो है वो हमारे प्रोग्राम को ट्रांसलेट करता है। इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन जो है ट्रांसलेट करता है। से सपोज मैंने पहले फर्स्ट लाइन को ट्रांसलेट करेगा, अगर उसमें कोई एरर, कोई वार्निंग होगी तो पहले हम उसको जब तक क्लियर ना करें तब तक वो आगे नहीं बढ़ेगा, उसको क्लियर करेंगे फिर आगे फर्दर नेक्स्ट लाइन फिर लाइक सो ऑन। ठीक है, तो कंपाइलर और इंटरप्रेटर में ये फर्क है। उसके बाद असेंबलर। असेंबलर क्या है कि एक लैंग्वेज है जिसको बोलते हैं असेंबली लैंग्वेज। तो असेंबलर इज द ट्रांसलेटर फॉर असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज का या असेंबली का जो कोड होता है असेंबली लैंग्वेज का, उसको ट्रांसलेट करने के लिए जो ट्रांसलेटर चाहिए होता है उसको बोलते हैं हम जो है असेंबलर। ओके, लेट्स सी गो अहेड। ओके, डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। सेम वही चीजें,
ट्रांसलेट प्रोग्राम्स इंटरप्रेटर क्या करता है, इंटरप्रेटर ट्रांसलेट प्रोग्राम वन स्टेटमेंट एट वन टाइम, इट वही बात हो गई। और कंपाइलर स्कैन्स द एंटायर प्रोग्राम एंड ट्रांसलेट इट एज अ होल इनटू मशीन कोड। तो बहरहाल यही वही चीज़ हो गई कि ट्रांसलेटर जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर जो तीन टाइप के होते हैं, कंपाइलर, इंटरप्रेटर और जो है हमारा असेंबलर। ठीक है, तो कंपाइलर क्या करता है, पूरे प्रोग्राम को एक साथ जो कंपाइल करता है, और उसके बाद जो है, और इंटरप्रेटर क्या करता है कि इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन उसको कंपाइल करता है। अब आते हैं, जैसे हम अब आते हैं सी लैंग्वेज पे। ठीक है, सी लैंग्वेज का जैसे मैंने आपको बताया, डेनिस फादर ऑफ सी लैंग्वेज इज डेनिस रिची। ओके, इट वाज discovered or created in early 1970s at Dell's laboratory that is located in America. चलो ये बात तो क्लियर हो गई। ओके, नाउ कुछ पॉइंट्स हैं कि एक वर्ड है आईडीई। ओके, आईडीई जिसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। Integrated Development Environment is software for application, sorry, for building application that combines common developer tools into a single graphical user interface. So basically, IDE stands for Integrated Development Environment. अब जिस सॉफ्टवेयर पे, जिस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर पे हम सी की प्रोग्रामिंग करेंगे ना, उसको हम बोलते हैं आईडीई। दैट इज द आईडीई ऑफ सी लैंग्वेज। ठीक है, जहाँ पे हम सी की जो है प्रोग्रामिंग करेंगे, मतलब जहाँ पे भी हम प्रोग्रामिंग करें ना, जैसे सपोज जावा की प्रोग्रामिंग जहाँ पे करेंगे, उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को हम बोलेंगे आईडीई ऑफ जावा। ठीक है, आईडीई का मतलब ये इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। जहाँ पे वर्ड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट हो गया, मतलब ये स्टार्टिंग अबाउट IDE or the place there where he will be doing programming. So IDE is basically software for building application that combines common developer tools into a single graphical user interface GUI. Now that's IDE for C language. There are a lot of IDEs for C language. Okay, Turbo C is there. The IDE that we will be following, this IDE. हम जिस IDE पे काम करेंगे ना, वो कुछ इस तरीके से होगा। We will be following this particular IDE. हम इस IDE पे अपनी प्रोग्रामिंग करेंगे। अब वेरी फर्स्ट प्रोग्राम और IDE पे आने से पहले मैं कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ कि वेरी फर्स्ट प्रोग्राम जो है सी का कुछ इस तरीके से होगा। अब मैंने आपको कुछ लिटिल बिट बैकग्राउंड दे दिया है। अब फर्स्ट प्रोग्राम पे आते हैं कि फिर जैसे सपोज वेरी फर्स्ट प्रोग्राम है द फर्स्ट सी प्रोग्राम। अब इस प्रोग्राम पे ये प्रोग्राम कर क्या रहा है, हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर रहा है। ठीक है, अब सी दिस प्रोग्राम प्रिंट्स हेलो वर्ल्ड टू स्क्रीन। ठीक है, ये हो गई आपकी कमेंट्स। कमेंट्स आर इग्नोर्ड बाय द कंपाइलर। The actually, let me tell you all that I have discussed these things more than lot of time. But again, I have kept today's session just to let you know the concepts or to clear your concepts about C, because I know the importance of C very well. So I don't want that you should feel that this is a difficult subject or we cannot get, because due to COVID, there are a lot of students who cannot, because programming cannot be understood normally, cannot, no one can understand at the very beginning. Even, or I can say first year students, for first year students, it is very difficult to cover the programming subject online. So that is why I'm using an extra session. So when the first C program, this program prints hello world. अब program यहाँ से start हो रहा है, include stdio.h। अब include stdio.h, what is that? उसको क्या बोलते हैं? ये है preprocessor directive। stdio.h is the header file containing IO function declaration।
सिंपल वर्ड्स में ये जो इंक्लूड stdio.h, इंक्लूड onio.h, इंक्लूड method.h, हम जो भी इंक्लूड करेंगे ना उसको बोलते हैं हेडर फाइल्स। ठीक है, ये बेसिकली हेडर फाइल्स होती हैं। उसके बाद आते हैं इनको, इसको फर्दर में अगेन आई विल रिपीट इट अगेन। सो टिल नाउ ये जो है लाइब्रेरी फाइल्स होती हैं जो हमें हर प्रोग्राम में सबसे पहले लिखनी पड़ती है। देन इंट मैन, यहाँ पे हम वॉइड भी लिख सकते हैं। ठीक है, इंट मैन, ईच सी प्रोग्राम मस्ट हैव वन मेन फंक्शन। अब यहाँ पे जो मेन है ना वो मेन एक फंक्शन है। ठीक है, मेन इज अ फंक्शन that controls that is the flow of I can say that controls the flow of all the program. मेन के पास ये कंट्रोल होता है कि वो पूरे प्रोग्राम जो प्रोग्राम का कंट्रोल जो है या पूरे प्रोग्राम को कंट्रोल करे, या पूरे प्रोग्राम का कंट्रोल जो है वो मेन के पास होता है। तो उसके बाद जो है पैरेंथेसिस है, ये ओपनिंग और ये क्लोजिंग, क्लोजिंग पैरेंथेसिस और ब्रैकेट्स व्हाटसोएवर यू से, वी कॉल इट पैरेंथेसिस। तो मेन की बॉडी यहाँ से शुरू हो रही है, ये जो पैरेंथेसिस आपको दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे खत्म हो रही है। ये सारी मेन की बॉडी है, यहाँ से शुरू हुई यहाँ पे खत्म हुई, और ये मेन फंक्शन हो गया। उसके बाद प्रिंट एफ फंक्शन, प्रिंट एफ इज बेसिकली इज आउटपुट फंक्शन। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है प्रिंट से हेलो वर्ल्ड and \n advances the cursor to a new line. Okay, leave it. Printf is basically is output function. Okay, there are output function is there, input function is there. So basically at this point I can say there are two type of functions, input and output. इनपुट फंक्शन का क्या काम होता है, इनपुट फंक्शन का सॉरी पहले आते हैं आउटपुट फंक्शन। आउटपुट फंक्शन का काम क्या होता है कि हमें जो भी मैसेज डिस्प्ले करना होता है ना स्क्रीन पे, जैसे यहाँ पे अब इस प्रोग्राम का जो आउटपुट होगा हेलो वर्ल्ड, तो हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराना, मुझे जो चीज़ भी प्रिंट करानी हो ना स्क्रीन पे वो मैं प्रिंट एफ पे में या प्रिंट एफ फंक्शन में लिखूंगा। तो सो प्रिंट एफ जो है वो आउटपुट फंक्शन है। और यहाँ पे जो बैकस्लैश एन लिखा हुआ है ना वो लिखा हुआ है, बैकस्लैश एन हम यूज करते हैं, इसको बोलते हैं स्केप सीक्वेंस। स्केप सीक्वेंस बैकस्लैश एन यूज होता है फॉर न्यू लाइन। जैसे हम इंटर प्रेस करते हैं ना तो बैकस्लैश एन जो है वो इंटर का काम करता है। जहाँ भी हमें बैकस्लैश एन लिखेंगे इट विल कम टू नेक्स्ट लाइन। ठीक है, और यहाँ पे मेन की बॉडी खत्म हो गई। तो ये कुछ चीज़ें हैं, बहरहाल ये प्रिंट एफ है। और फंक्शन ये जो है वेरी फर्स्ट प्रोग्राम था सी का, सी बेसिकली कैसे होता है या XYZ। Now let's come to IDE of C language. Okay. So this is the basic IDE of C। जो भी मुझे प्रोग्राम टाइप करना है इसे सपोज, तो ये जो इसका नाम है टर्बो सी प्लस प्लस, दैट आई ऑलरेडी टोल्ड यू, टर्बो सी प्लस प्लस। ठीक है, तो ये जो है IDE है जिसपे हम जो है सी की प्रोग्रामिंग करेंगे। अब जैसे वहाँ पे था कुछ चीज़ें वहाँ पे मिसिंग थी, like include stdio.h, and yes, don't get confused that I'm writing include stdio.h, what is the reason behind and where actually it is located, and if I will not write include stdio.h, then what uh, difference it will make, whether my programs will run or not. I will be discussing each and every factor, so don't worry anything about this. So include stdio.h, include onio.h, void name। ओके,
ये जो है फर्स्ट ऑफ ऑल इंक्लूड stdio.h देन इंक्लूड conio.h, ये क्या है, ये है हमारी लाइब्रेरी फाइल्स या इनको हम बोलते हैं हेडर फाइल्स, ठीक है, stdio.h और conio.h। अब इनकी जो ये जो हम लिख रहे हैं ना stdio.h और conio.h, इसका काम क्या है वो मैं फर्दर आपको बताता हूँ जब मैं पूरा प्रोग्राम लिख लूंगा, और अगर इनमें कोई मिस्टेक करता हूँ ये ना लिखता हूँ तो भी क्या फर्क पड़ता है वो भी आपको मैं बताऊंगा। तो void main, अब इस void का मतलब बेसिकली normally students say that sir that void mean nothing, but void actually void doesn't mean nothing, void means this particular void जो ये लिखा हुआ है that means that this program will not return any value। जैसे हमने प्रीवियस प्रोग्राम देखा था ना उसमें यहाँ पे int लिखा हुआ था, ठीक है, और वहाँ पे लास्ट में लिखा हुआ था रिटर्न 0, बट एट दिस पॉइंट we will write void, and this void means this program will not return any value, okay, this program will not return any value। Then we have main function, okay, main, and we know very well main about main function controls the flow of all the program, and this is the body of the main function, these parent that start from here, now say suppose CLR, this is another function, clear screen, clear screen function is used to clear the previous output or previous message that we have displayed or we have printed, and we will be saying if we will not clear right clear screen, so what will happen or something। So clear at this point, the reason of writing clear screen लिखने का मकसद ये है कि ये जो है प्रीवियस हमारा जो भी आउटपुट होता है ना उसको क्लियर कर देता है, ठीक है, तो क्लियर स्क्रीन लिखने का मकसद ये होता है। अगर हम क्लियर स्क्रीन ना लिखें ना तो हमें अगेन एंड अगेन वो प्रीवियस आउटपुट हमारा दिखाता रहता है। अब नाउ printf फंक्शन मैंने बताया, as I told you printf is an output function। printf जो आउटपुट फंक्शन है उस पे हम जो भी मैसेज लिखेंगे ना वो डिस्प्ले करेगा। Then we have another function getch। अब getch का क्या काम है, getch क्या करता है, हमारी आउटपुट स्क्रीन को होल्ड करके बैठता है जब तक के यूजर कोई की प्रेस ना कर दे। जब तक यूजर कोई की प्रेस नहीं करता तब तक जो है वो हमारी स्क्रीन को होल्ड करके बैठता है। गेट सीएच का फुल फॉर्म है गेट कैरेक्टर। सो जब तक कोई यूजर की नहीं प्रेस करेगा तब तक आपकी आउटपुट स्क्रीन होल्ड करके रखेगा वो, ठीक है। सो दैट इज द वर्क ऑफ गेट सीएच। नाउ प्रिंट एफ इज एन आउटपुट फंक्शन, और बेसिकली मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ फंक्शन। तो फंक्शन को कैसे रिकॉग्नाइज करें, क्वेश्चन है कि हमें कैसे पता चलता है कोई चीज फंक्शन है। अब देखें, जैसे मैंने बोला मेन फंक्शन है, और मेन कैसे लिखा हुआ था, ऐसे, ठीक है। उसके बाद दिस इज फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, इसको नीचे करके रख रहा हूँ। और दूसरा मैंने बोला प्रिंट एफ फंक्शन है, ओके, प्रिंट एफ भी फंक्शन है। उसके बाद मैंने बोला कि आपका गेट सी एच भी फंक्शन है, ओके, गेट सी एच भी फंक्शन है। इन तीनों में कॉमन चीज क्या है, और भी बहुत सारे फंक्शन है लेकिन यहाँ तक ये है तो मैं ये बात बता रहा हूँ। इन तीनों में कॉमन चीज क्या है, यहाँ पे ये जो है मेन फंक्शन का नेम है, प्रिंट एफ फंक्शन का नेम है, गेट सी एच फंक्शन का नेम है। अब फंक्शन की डेफिनेशन ये है, एनी पर्टिकुलर स्टेटमेंट दैट इज फॉलोड बाय ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रेसेस दैट इज सेड टू बी फंक्शन। फंक्शन की डेफिनेशन ये है, हर वो पर्टिकुलर स्टेटमेंट और कीवर्ड जिसके लास्ट में जो है ओपनिंग और कर्ली सॉरी ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रेसेस होंगे ना उसको हम बोलते हैं फंक्शन। जैसे मेन देखा तो यहाँ पे जो है ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रेसेस हैं, प्रिंटफ में भी ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रेसेस हैं, गेट सीएच में भी ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रेसेस हैं। और यहाँ पे एक चीज है, लास्ट में ये जो दिया हुआ है स्टेटमेंट, इसको बोलते हैं स्टेटमेंट टर्मिनेटर। जैसे हम यूज करते हैं ना, हम बोलते हैं फुल स्टॉप जहाँ पे हमारा सेंटेंस खत्म हो गया, तो सी में या कंपाइलर कैसे समझेगा कि कहाँ पे सेंटेंस कोई चीज खत्म हो रही है। तो दिस इज अ पर्टिकुलर साइन, ये जो
जिसको मैं स्टेटमेंट टर्मिनेटर बोल रहा हूँ, ये क्या है, ये कंपाइलर के लिए फुल स्टॉप है। इट इज लाइक अ फुल स्टॉप फॉर कंपाइलर। कंपाइलर को इसके थ्रू पता चलता है कि भाई इसकी जो है पर्टिकुलर एक स्टेटमेंट यहाँ पे एंड हुई है, तो इसी के थ्रू पता चलता है। अगर हम ये ना दें जहाँ पे नीड हो, तो वो हमें एरर जनरेट करेगा कि स्टेटमेंट मिसिंग, कि कौन, क्योंकि उसको पता ही नहीं चलेगा कि कौन सी स्टेटमेंट कहाँ पे खत्म हो रही है। तो बेसिकली ये चीज़ है। अब बात एक और चीज़ ये है कि यहाँ पे प्रिंट एफ है, ठीक है। अब आपने देखा प्रिंट एफ में ये दो चीज़ें लिखी है। अब प्रिंट एफ क्या है, जैसे मैंने बोला प्रिंट एफ इज एन आउटपुट फंक्शन। अब उसमें जो भी मैं मैसेज लिखूंगा ना, वो ये डबल कोटेशन के अंदर लिखूंगा, ठीक है। मतलब फर्स्ट में भी डबल कोटेशन एंड लास्ट में भी डबल कोटेशन। अब इसके अंदर में जो कुछ भी लिखूँ एक्स वाई ज़ेड, दैट मैसेज विल बी प्रिंटेड, ठीक है। अब पहले आते हैं इस प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं, देन फर्दर इसको एक्सप्लेन करूंगा। नाउ लेट्स कंपाइल दैट प्रोग्राम। कंपाइल करने का वेरी सिंपल, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सेव दिस प्रोग्राम। सेव, so suppose I'm giving it name first.c, okay. Now for compile, click compile over here। कंपाइल किया, जीरो एरर्स जीरो वार्निंग्स। जैसे हमने बोला, देखा था ना कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर में फर्क क्या है, कि कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को एक साथ कंपाइल करता है और जो है बाद में एरर और वार्निंग का होता है, ठीक है। उसके बाद रन पे क्लिक किया। अब मुझे मैसेज, जैसे मैंने बोला प्रिंट एफ आउटपुट फंक्शन है, वो मैसेज जो भी शो करना होता है वो हम प्रिंट एफ में लिखते हैं। अब मुझे इस सारे प्रोग्राम का आउटपुट सिर्फ मिलेगा हेलो वर्ल्ड। और सी, हेलो वर्ल्ड इज द आउटपुट। अब मैंने कुछ चीज़ें बोली थी उसको, प्रीवियसली हमने हमने एक चीज़ देखी, कमेंट्स। कमेंट्स क्या होती हैं, कि कमेंट्स की डेफिनेशन ये थी, कमेंट्स आर इग्नोरेबल बाय कंपाइलर और कंपाइलर इग्नोर्स कमेंट्स। अब इसको मैंने कमेंट कर दिया। देखें इसकी जो ये जैसे हिडन हो गया। अब कमेंट्स क्या होता है कि कंपाइलर जिस भी स्टेटमेंट को आप कमेंट कर देंगे ना, कमेंट्स के दो तरीके होते हैं किसी भी स्टेटमेंट को कमेंट करने के। ये वन लाइन कमेंट है और मल्टी लाइन कमेंट का मेथड कोई और है, वो आपको फर्दर आगे बताऊंगा। तो इसको मैंने कमेंट कर दिया। अब कंपाइलर के लिए ये स्टेटमेंट जो है, समझो यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ है, कंपाइलर के लिए ये इग्नोरेबल है। वो जब इसको रीड आउट करेगा ना, तो उसको ये जो है पर्टिकुलर स्टेटमेंट नजर नहीं आएगी, क्योंकि हमने इसको कमेंट कर दिया। अब इसको मैं कंपाइल करता हूँ, ठीक है। आई एम कंपाइलिंग, मैंने इसको रन किया। अब देखें हेलो वर्ल्ड, अगेन हेलो वर्ल्ड, ठीक है। अगेन मैं इसको रन करता हूँ। शॉर्टकट की फॉर रन इज अल्टर F9। देखें जितनी बार मैं इसको रन करता जाऊंगा, ये हेलो वर्ल्ड मुझे प्रिंट करता दिखाता जाएगा। सो क्लियर स्क्रीन का काम क्या था, कि प्रीवियस जो आउटपुट है ना, उसको जो है इरेज करना, हर बार मुझे न्यू आउटपुट दिखाना। अब क्लियर स्क्रीन को मैंने कमेंट से हटा दिया सब कुछ। अब मैं इसको कंपाइल करता हूँ। अल्टर F9 जो है की है फॉर कंपाइल, ठीक है। तो अल्टर F9 मैंने प्रेस किया, कंपाइल हो गया। कंट्रोल F9, अब मुझे एक ही बात दिखा रहा है। फिर से मैं कंट्रोल F9, एक ही बात दिखा रहा है। कंट्रोल F9, एक ही बात दिखा रहा है। तो क्लियर स्क्रीन का कॉन्सेप्ट आई थिंक नाउ इट इज क्लियर। so that the function of clear screen is that to clear the previous output। उसके बाद जो है आते हैं गेट सी एच पे। अब मैंने गेट सी एच को से सपोज कमेंट कर दिया। अब मैं कंपाइल करता हूँ, हो गया कंपाइल। अब मैं रन कर रहा हूँ, देखें मेरा प्रोग्राम रन हो रहा है, लेकिन मुझे कुछ शो क्यों नहीं हो रहा। रीजन इज दिस, जब भी हम गेट सी एच नहीं लिखते हैं ना, अब मैंने कंपाइल गेट सी एच को कमेंट कर दिया ना, मतलब इट इज इग्नोरेबल फॉर कंपाइलर। कंपाइलर डू नॉट नो दैट एनी स्टेटमेंट इज रिटन ओवर हियर, ठीक है। तो गेट सी एच नहीं लिखते हैं ना, तो ये होता है कि हमारा जो आउटपुट होता है ना, वो कुछ नैनो सेकेंड्स, वी कैन से नैनो सेकेंड्स के लिए शो होता है और वो गायब हो जाता है। मतलब वी कैन नॉट सी, इन सिंपल वर्ड्स गेट सी एच जो है अगर ना लिखे तो हमें आउटपुट मिलता ही नहीं, ये भी कह सकते हैं। लेकिन इन ब्रॉड कैटेगरी, तो बेसिकली आउटपुट दिखाई देता है, लेकिन फॉर नैनो सेकंड्स वी कैन नॉट जज दैट वेदर इट इज शोन टू अस और नॉट। सो गेट सीएच क्या करता है, क्योंकि इसका फुल फॉर्म मैंने आपको बताया गेट कैरेक्टर। कंट्रोल F9 आपकी स्क्रीन को होल्ड करके बैठा है, ठीक है। अब जैसे ब्लिंकिंग कर रहा है ना, ब्लिंकिंग कर रहा है, कहीं पे भी ब्लिंकिंग होती है, मींस इट इज सेइंग मी टू प्रेस एनी की। अब मैं कोई भी की प्रेस करता हूँ, वो वापस से उसी पर्टिकुलर स्क्रीन पे आ जाए।
Now void main, these things are clear, clear screen is there. अब से सपोज मैंने बोला था कि ये जो स्टेटमेंट टर्मिनेटर है ये जो है वो फुल स्टॉप है कंपाइलर के लिए। अब मैंने इसको हटा दिया से सपोज, समझो इसे मैंने लिखना भूल गया। अब मैं इसको कंपाइल करता हूँ। लेट्स सी, इट इज सेइंग मी देयर इज अ वन एरर, नो वार्निंग इज देयर, वार्निंग इज 00, एरर इज वन, एरर इज देयर, स्टेटमेंट मिसिंग। ठीक है, और वो लाइन भी बता रहा है 6 लाइन पे। लेट्स काउंट 1 2 3 4 5 6 पे इसलिए बता रहा है क्योंकि 5 पे जो स्टेटमेंट चल रही थी ना वो खत्म नहीं हुई कहीं पे भी। ठीक है, वो 6 पे आके रुकी है, तो इसीलिए जो है यहाँ पे हमें बता रहा है। अब हम जब ये दे देंगे, ठीक है, अल्टर F9 कंट्रोल F9 तो हमने वापस लिखा। अब एक और चीज, अब मैंने जैसे क्लियर स्क्रीन लिखा ना, अगर मैं इसको से सपोज ऐसे लिख लूँ CLEAR क्लियर, अब मैं अगर पूरा लिखूँ क्योंकि इसका फुल फॉर्म तो ये है ना। अब देखिए क्या एरर जनरेट करता है। Undefined symbol clear screen in module first course, because clear screen जो हम ये जो लिख रहे हैं ना उसका रीजन ये है। सो जैसे हमने जो है प्रिंट एफ है, क्लियर स्क्रीन की हमने इसमें स्पेलिंग गलत लिखी तो वहाँ पे हमें एरर जनरेट कर रहा था। ठीक है, अब से सपोज क्लियर स्क्रीन का मैं सी बड़ा लिखता हूँ। ठीक है, अब मैं इसको कंपेयर करता हूँ। ओके, अनडिफाइंड सैंपल CLR SCR, बिकॉज क्लियर स्क्रीन जो है ये केस सेंसिटिव है, हमें जैसे क्लियर स्क्रीन का सी छोटा लिखना है। कुछ चीज़ें हैं जो जैसे उसकी डेफिनेशन है वैसे ही हमें लिखनी है। क्लियर स्क्रीन का सी हम छोटा ही लिखेंगे। अगर प्रिंट एफ में मैंने कोई मिस्टेक कर दी, ठीक है, प्रिंट एफ में मैं सिर्फ प्रिंट लिख लिया ऐसे सब कुछ, ठीक है, कंपाइल किया, अनडिफाइंड सैंपल प्रिंट एफ इन मॉड्यूल फर्स्ट डॉट सी, वही चीज़। ये तो हो गया कि जो है हम कोई भी अगर चेंजिंग करते हैं गेट सी एच को गेट सी एच में कोई स्पेलिंग मिस्टेक करेंगे तो ये साइंटेक्स, बेसिकली ये एरर का एक टाइप है, कुछ साइंटेक्स और एरर होता है, जैसे स्पेलिंग मिस्टेक हो गई या कुछ भी। अब दूसरी बात, ये जो stdio.h है ना, मोस्टली स्टूडेंट राइट इट एज स्टूडियो। स्टूडेंट, न्यू स्टूडेंट क्या करते हैं, एसटीडीआईओ को स्टूडियो कर देते हैं। आई यू सीन इट मोस्ट ऑफ स्टूडेंट इसको स्टूडियो कर देते हैं। अब से सपोज अब मैं इसको कंपेयर करता हूँ इस स्टूडियो को एचआरएफ में, अनेबल टू ओपन इंक्लूड फाइल stdio.h। अब देखो यहाँ पे जो एरर दे रहा है अनेबल टू ओपन फाइल इंक्लूड, ओपन इंक्लूड फाइल std, सॉरी studio.h, मतलब ये कि वहाँ पे कोई ना कोई फाइल मौजूद है जिसमें ये सारी जो प्रिंट एफ जो हम लिख रहे हैं, क्लियर स्क्रीन लिख रहे हैं, गेट स्केच लिख रहे हैं, वो जो है कोई ना कोई फाइल वहाँ पे है जिससे इसका लिंक है, और हम सिर्फ जो है इस इन फाइल्स को गेट सी एच को प्रिंट एफ को यूज कर रहे हैं, उसकी डेफिनेशन कहीं ना कहीं पे मौजूद है, इसीलिए जो है यहाँ पे एरर दिया। अब मैं इस एस टी डी स्टूडियो को वापस सही करता हूँ, एस टी डी आई ओ डॉट एच। अब सॉरी प्रिंट एफ में मिस्टेक,
सो ये था फर्स्ट प्रोग्राम, ठीक है। अब इसका मतलब यही हुआ कि मैं जो भी चीज़ें लिख रहा हूँ लाइक क्लियर स्क्रीन, प्रिंटफ, गेट्स, ये उसकी डेफिनेशन कहीं ना कहीं पे मौजूद है, ठीक है। अब एक और बात, हमें कुछ रिस्ट्रिक्शन तो है, जैसे क्लियर स्क्रीन का वी कैन नॉट राइट capital C for clear screen function, or we cannot add something in function, or we cannot yes, there are basically two types of function. One is user defined function and the second one is predefined. ये जो फंक्शन हम यूज कर रहे हैं ना, क्लियर स्क्रीन, गेट सी एच, प्रिंट एफ, ये प्री डिफाइंड फंक्शन है। प्री डिफाइंड का मतलब ये है कि इनकी डेफिनेशन ऑलरेडी मौजूद है। जैसे stdio डॉट एच लिख रहे हैं ना, उसकी डेफिनेशन हमारे पास कहीं ना कहीं पे मौजूद है, ठीक है। और मे बी stdio डॉट एच में मौजूद हो, प्रिंट एफ की, क्लियर स्क्रीन की में भी कोनियों में मौजूद हो, ठीक है। तो ये हो गए प्री डिफाइंड, और दूसरे होते हैं यूजर डिफाइंड। हम अपनी तरफ से भी फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं, दैट विल बी डिस्कस लेटर ऑन, वो अलग चैप्टर है एंड दैट इज अ बिट एडवांस। अब से सपोज मैं इसको कमेंट कर, मैंने इंक्लूड stdio डॉट एच को कमेंट कर दिया। अब मैंने इंक्लूड कोनियो डॉट एच को कमेंट कर दिया। एक्चुअली ये कमेंट यहाँ पे काम नहीं कर रही, इसको मैं सपोज हटा देता हूँ HRF में, there is some sort of mistake। हम जब भी ऐसा कुछ करते हैं, okay, function clear screen should have a prototype, function printf should have a prototype, function getch should have a prototype। अब जैसे मैंने यहाँ पे लिखा include stdio.h, अब देखते हैं कौन सा एरर यहाँ से जाता है। यहाँ पे क्लियर स्क्रीन, printf और getch तीनों का एरर दे रहा है, ठीक है। अब क्लियर स्क्रीन और गेट सी एच का दे रहा है, लेकिन प्रिंट एफ का चला गया, मतलब stdio डॉट एच जो लाइब्रेरी फाइल है, हेडर फाइल है, उसमें प्रिंट एफ की डेफिनेशन मौजूद है। बाकी जो रिमेनिंग क्लियर स्क्रीन और गेट सी एच है, उसकी जो डेफिनेशन जो है वो हमारे कोनियो डॉट एच में मौजूद है। include include conio.h। so this is the href9 compile, href9 forum। So this is the very first program। now जैसे मैंने बोला कि इनकी डेफिनेशन कहीं ना कहीं पे मौजूद है, लेट्स सी कि वाकई में मौजूद है भी या नहीं। ऐसा क्या है, ऐसा है भी या नहीं। जो stdio डॉट एच कहीं पे मौजूद है, फोनियो कहीं पे मौजूद है या नहीं। लेट्स सी, लेट्स हैव अ लुक। सी की डायरेक्टरी में हम जाते हैं, चलो C4 में, सी में। अब ये यहाँ पे इंक्लूड है ना, क्या था हमारा stdio डॉट एच, ये इंक्लूड में जो है हमारी चीज वाकई में पड़ी हुई है, ठीक है। अगर मैं इसको एडिट करता हूँ,
तो ये कुछ इस तरीके से जो है वो उसकी पूरी डेफिनेशन मौजूद है। सो बेसिकली इसका इन शॉर्ट मतलब ये हुआ कि हम जो भी चीज़, जैसे मैंने इंक्लूड stdio डॉटेज लिखा, दूसरा मैंने लिखा कोनियो कोनियो डॉटेज, उसकी भी डेफिनेशन यहाँ पे मौजूद है। जैसे मैं को बार बार एक वर्ड रिपीट कर रहा था कि इसकी डेफिनेशन मौजूद है। अब वाकई में मैं जब टीसी में गया, टर्बोसी के फोल्डर में गया, सी में जाके वहाँ पे टीसी में गया, इंक्लूड में गया, तो वाकई में ये चीज़ें यहाँ पे मौजूद है। कोनियो डॉटेज और एक और लाइब्रेरी फाइल जो मोस्टली हम यूज़ करते हैं, मैथ डॉटेज, वो भी इसमें मौजूद है। ठीक है। अब तो दूसरी बात, जो भी मैं प्रोग्राम सेव कर रहा हूँ ना, जिको भी प्रोग्राम हम सेव कर रहे हैं, व्हाटसोएवर प्रोग्राम आई एम सेविंग, लेट्स कम इन बी, सॉरी बिन, I have saved my program with the name of first. Okay, first.c. Now see, my program is over here. First.c में include stdio data h, include convo.h, तो ये चीज यहाँ पे मौजूद है। Whatsoever programming the programs we are writing that are present over here. और ali.cpp और जो भी एक्सवाइजी जो भी प्रोग्राम है वो सारे यहाँ पे मौजूद। Let me discuss something. Okay. ये है एक पिक्चर दैट इज ऑफ मोस्ट इम्पोर्टेंट। लेट्स कम टू सिलेक्शन। यहाँ पे बेसिकली क्या है कि एक प्रोग्राम है, ठीक है, ये यहाँ पे एक प्रोग्राम है, इसका नाम है माई प्रोग्राम डॉट सी। ये है बेसिकली सोर्स फाइल। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस डायग्राम, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। माई प्रोग्राम और माई प्रोग जो जो भी एक्सवाइजी नाम है, से सपोज अली डॉट सी, ये है इसका सोर्स फाइल। और या यस वन मोर थिंग, व्हाटसोएवर प्रोग्राम इज आई एम राइटिंग, द कोड दैट आई एम राइटिंग इज सेड टू बी सोर्स कोड, उसको हम सोर्स कोड बोलते हैं। सो दिस इज द सोर्स कोड माई प्रोग डॉट सी। ठीक है। इसके बाद क्या 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 है कि जब मैंने प्रोग्राम लिखा तो मैं कंपाइल कर रहा था। ठीक है, मैंने प्रोग्राम जब लिख लिया ना, तो मैंने उसको कंपाइल करना स्टार्ट किया था। ठीक है। जब मैं कंपाइल करता हूँ तो क्या होता है, पॉसिबल इंक्लूड फाइल जैसे stdio.h, वो जो है कंपाइल टाइम जो है वो देखेगा कि क्या क्या चीज़ें उसमें जो है इंक्लूड की हुई हैं, जैसे इंक्लूड stdio.h, ये सारी चीज़ें। जब आपका प्रोग्राम कंपाइल हो जाएगा ना, ठीक है, उसके बाद जो है माई प्रोग डॉट ओबीजी फाइल बनेगी। जब आपका प्रोग्राम कंपाइल होगा ना तो डॉट ओबीजी फाइल एक बनती है। ठीक है। जब डॉट ओबीजी फाइल बन जाएगी, उसके बाद क्या होगा, लिंकर का प्रोसेस है। लिंकर क्या करेगा, वो लाइब्रेरी फाइल्स चेक करेगा, लाइब्रेरी फाइल्स में और पॉसिबल अदर यूजर जनरेटेड ऑब्जेक्ट फाइल कि कोई मिस्टेक तो नहीं है। जैसे हमारा वो आ रहा था ना कि मैं लिख रहा था stdio.h को मैंने मिटा दिया था, ठीक है, या printf में मिस्टेक कर रहा था, मैंने क्लियर स्क्रीन को clr को मैंने क्लियर स्क्रीन लिख दिया था, तो वहाँ पे जो मिस्टेक आ रही थी वो बेसिकली यहाँ से आ रही लिंकिंग एरर था। ये वो जब लाइब्रेरी फाइल्स को लिंक कर रहा था ना, तो वो चीज़ उससे मैच नहीं हो रही थी। मतलब उसमें जो उसकी डेफिनेशन थी stdio.h की जो लाइब्रेरी में, वो चीज़ जो है उससे मैच नहीं हो रही थी जो मैंने की, इसीलिए वहाँ पे वो लिंकिंग, दैट एरर वाज अबाउट लिंकिंग एरर, तो वहाँ पे लिंकिंग एरर आ रहा था। उसके बाद जब लिंकिंग सक्सेसफुल हो गई तो ये myprog.exe के नाम से जो है उसकी फाइल बन जाएगी। तो स्टेप्स क्या फॉलो होंगे, सबसे पहले हमारा प्रोग्राम myprog.c के नाम से मैंने सोर्स कोड लिखा, उसको मैं कंपाइल करूंगा। ठीक है। कंपाइल करने के टाइम जो उसमें जो भी लाइब्रेरी फाइल्स जो हैं, पॉसिबल जो भी हेडर फाइल्स हैं, वो इंक्लूड होती हैं उसमें, जैसे stdio.h, conio.h। ठीक है। उसके बाद जब कंपाइल करेंगे तो उसकी ऑब्जेक्ट फाइल बनेगी।
myproc.obj, ठीक है। जब obj फाइल बनेगी तो वो उसके बाद प्रोग्राम लिंकिंग होगी। जब हम रन करने की कोशिश करेंगे ना तो लिंकिंग होगी। और लिंकर क्या करता है, लिंकिंग के जो एक्शन होता है या टास्क होता है, जब लिंकिंग हो रही होती है तो लाइब्रेरी फाइल्स जो होती हैं cs.live जहाँ पे लिखा हुआ है, तो लाइब्रेरी फाइल्स और जो पॉसिबल अदर जो है यूजर जनरेटेड ऑब्जेक्ट फाइल, चेक होता है कि लाइब्रेरी फाइल्स में ये चीज़ मौजूद है या नहीं। इसने अपनी तरफ से कोई चीज़ इंट्रोड्यूस तो नहीं की, इसने कोई मिस्टेक तो नहीं किया, कोई एरर तो नहीं है। हमें जो भी एरर्स और वार्निंग्स जो भी मिलती है ना, तो ये बेसिकली इसी स्टेप में होता है, ठीक है। लिंकिंग का कोई एरर होता है, ठीक है। और उसके बाद जब लिंकिंग सक्सेसफुल हो गई तो हमारा प्रोग्राम जो है myproc.exe के नाम से जो है वो सक्सेसफुली हो जाएगा। अब यहाँ पे जैसी में हमने चीज़ें देखी है ना, उसको जो है हम एक नज़र जो है ब्रीफली देखते हैं। अब ये तो है एक बना हुआ प्रोग्राम। अब लेट्स टाइप another name, include stdio.h. I'm going to prove whatever what was in that picture. Include ponyo.h, void main clrscr, printf. So the program writing. As I said, there's no restriction. Whatever you want to write, you can write in printf. This is informative session of C. Then get ch. Okay. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करता हूँ, मैं सिर्फ उसको सेव कर रहा हूँ। से सपोज लेट्स गिव दिस इट नेम inquire inquire.cpp. Now let's move towards हम जो है सी में सी की डायरेक्टरी में आए, इसमें टर्बो सी में आए, टीसी में आए, उसके बाद बिन में आए। क्या नाम था, इंक्वायर का, ठीक है। सी है inquire.cpp के नाम से जो है वो हमारे पास फाइल मौजूद है, ठीक है। अब उसमें वही चीज़ सी, वही चीज़ लिखी हुई है जो हमने लिखी थी। दिस इज इंफॉर्मेशन सेशन ऑफ सी। अब जैसे ही मैंने सेव की ना तो यहाँ पे जो सॉरी जैसे ही मैंने सेव की तो ये चीज़ जो है वहाँ पे inquire.cpp के नाम से आ गई। अब दूसरी बात क्या थी कि जब हम जो है उसको कंपाइल करते हैं तो उसकी कोई फाइल जनरेट होती है, ठीक है, ऐसा कुछ था ना। तो लेट्स सी दैट। अब मैं करता हूँ इसको, सिर्फ मैंने इसको कंपाइल किया, ठीक है। कंपाइल किया तो कंपाइल करने के बाद अकॉर्डिंग टू दैट जो हमने प्रीवियसली देखा, जब हम कंपाइल करेंगे तो वहाँ पे .obg फाइल बनेगी। लेट्स सी। सोर्स में आते हैं, सी inquire.obg file, sorry .obj, my goodness, I have just pronunciation mistake. So inquire.obj file, यहाँ पे पहले ये चीज़ मौजूद नहीं थी, ठीक है। inquire.obj
फाइल, ये यहाँ पे आ गई। नाउ जब ये चीज यहाँ पे आई है, अब तक सिर्फ मैंने इसको कंपाइल किया, अब मैं इसको रन करता हूँ। मैंने रन किया, दिस इज इंफॉर्मेशन सेशन ऑफ सी। ठीक है, जब रन कर लिया, सो लेट्स मूव अगेन टुवर्ड्स। अब यहाँ पे सी डॉट ई एक्स फाइल इसकी जनरेट हो गई। सी एंड प्रॉपर्टीज डॉट ई एक्स एनक्वायर डॉट ई एक्स। तो जो हमने पिक्चर देखी थी, तो मतलब वो चीज़ प्रूव हो गई कि जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो माय प्रोग्राम, लेट्स मूव टुवर्ड्स दैट पिक्चर अगेन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो है कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं उसको कंपाइल कर देते हैं। जब कंपाइल करते हैं तो डॉट ओबीजे फाइल उसकी बनती है। जब जो है लिंकर वगैरह करके मतलब उसको रन करने की कोशिश करते हैं, रन तभी होगा जब लिंकिंग वगैरह सब करेक्ट हो जाएगी, तो फिर उसका जो ई एक्सी फाइल बनती है। तो ये चीज़ प्रूव करनी थी जस्ट, इसीलिए जो है मैंने ये चीज़ें की हैं। So I think remaining I will be discussing in next session. It is so. So today's session is up to this. We will be discussing remaining in our next sessions. I think in today's session you must have learned very basic things that are quite important about C. That C, who's the father of C, what actually C is, what actually programming is, what is the need of the programming, who's the or what is the difference between high level and low level language, what are language translators, and what is the first C program, what is the meaning of void and main, what are the function, if I do not write something in any function, or if I miss anything, what error will generate, and what are the background processes. By background processes, I mean to say it if I'm compiling, what is happening after compiling. If I'm saving my program, what happens, where it is being stored. So all these things I think are clear now to all. And what are language translators? What I have discussed three type of translators. So C language basically used compiler, that is Turbo C++. Well, will be discussing next inshallah next lecture. Till that, take care of yourself. Allah Hafiz.